Welcome to Guru Gyan YouTube channel. Today we will discuss about minor. Minor comes under capacity of the parties chapter. First of all, I'll tell you what do you mean by section 11, means what section 11 says. Section 11 of the Contract Act deals with the competency of the parties and provides that every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law, who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. So basically, those persons who are incompetent to make a contract cannot form a valid contract. Means if they form a contract, then it will be called as a void agreement. So section 11 says that minor, person of unsound mind and person disqualified by any law to which they are subject are incompetent parties to make a valid contract. Now we will discuss about rules regarding minors agreement or effects of a minors agreement. First of all, definition according to section 3 of the Indian Majority Act 1875, minor is a person who has not completed his or her 18 years of age. Mean the person who is below 18 years of age will be called as a minor. The person who have completed 18 years of age will be called as a major. Means the person can make a valid contract if the person is a major, but if the person is a minor and he or she will make a contract with the other person, then that agreement will be called as a void agreement, void ab initio. Why minors are protected by the court? Because the minor has an immature mind and cannot think what is good or bad for him or her. Minors are often exploited. Means जो माइनर है, माइनर कोर्ट से प्रोटेक्टेड क्यों है? क्योंकि माइनर को पता नहीं होता कि जौन सा वो एग्रीमेंट करते हैं या कर रहे हैं उनके लिए वो ठीक है या गलत है, या उनको खुद नहीं पता होता है अकॉर्डिंग टू लॉ कि माइनर्स को ये पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो दे कैन नॉट जज अ पर्सन और दे कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. दैट्स वाई दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोर्ट. माइनर कई बार एक्सप्लॉयड भी होते हैं. नाउ we will talk about the rules regarding minors agreement or what are the main effects of a minor agreement. The first is an agreement with or by minor is void ab initio. कि जो agreement होता है with minor और by a minor is void ab initio. Void ab initio का meaning simple है कि from the starting, from the initial stage, that agreement will be void agreement forever. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हुआ था, मोहेरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष इन 1903. इस केस में जो हुआ है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक माइनर है जिसने कि 20,000 रुपीज़ बोरो किया फ्रॉम बी एंड एज ए सिक्योरिटी फॉर द सेम माइनर एग्जीक्यूटेड अ मॉर्टगेज इन हिज फेवर. और माइनर जो था वो थोड़ी महीनों बाद वो मेजर बन गया एंड माइनर ने ही केस फाइल कर दिया कि जो मेरी डिक्लेरेशन जो मॉर्टगेज हुई थी वो इनवैलिड थी बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज माइनर. सो कोर्ट ने इस केस में ये डिसीजन दिया बिकॉज जो माइनर ने मॉर्टगेज डीड दी थी वो वैलिड थी नहीं, बिकॉज माइनर जो है वो 18 साल से नीचे था, तो ऑटोमेटिकली वो जो एग्रीमेंट था वो वॉइड करार कर दिया गया. So it was held that a mortgage by a minor was void and B was not entitled to repayment of money. Even B को पैसा वापस भी नहीं मिला. So माइनर के साथ कोई भी अगर एग्रीमेंट करता है या माइनर जिसके साथ एग्रीमेंट करते हैं वो एग्रीमेंट हमेशा ही वॉइड होगा फ्रॉम द इनिशियल स्टेज. जब भी वो एग्रीमेंट बना तब से ही वो वॉइड माना जाएगा. नाउ सेकेंड पॉइंट इज नो रेटिफिकेशन. An agreement with minor is completely void. A minor cannot ratify the agreement even on attaining majority because a void agreement cannot be ratified. A person who is not competent to authorize an act cannot give it validity by ratifying it. जो minor ने agreement बनाया है वो तब से ही void agreement कहलाएगा
और बाद में भी उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता, उसमें कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसकी टर्म एंड कंडीशन चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज एक बार जो एग्रीमेंट वॉइड है तो वो फॉर एवर वॉइड ही रहेगा. सो देयर इज नो रेटिफिकेशन इन केस ऑफ अ माइनर्स एग्रीमेंट. माइनर कैन बी प्रोमिसरी और बेनिफिशियरी. येस, माइनर जो है वो प्रोमिसरी या बेनिफिशियरी हो सकते हैं. बेनिफिशियरी का मीनिंग सिंपल ये है जिसको बेनिफिट मिलना होता है एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में. सो जहाँ पे भी माइनर बेनिफिशियरी हैं या प्रोमिसरी हैं वहाँ पे वो अपना क्लेम ले सकते हैं फ्रॉम द अदर पार्टी. केस जनरल अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस सोनूलाल एंड मदन लाल. देखिए इस केस में क्या हुआ था, माइनर ने अपनी गुड्स को इंश्योर करवाया विद द इंश्योरेंस कंपनी, और जो गुड्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं. जो माइनर हैं वो क्लेम के लिए कंपनी को प्ली करते हैं, बट कंपनी उनको पेमेंट नहीं करती और माइनर केस फाइल कर देते हैं कोर्ट में. कोर्ट में कंपनी ये प्ली देती है कि जो माइनर्स हैं, क्योंकि मैंने उनके बिहाफ पे जो एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि वो माइनर हैं हम उनको क्लेम नहीं देंगे. बट कोर्ट जो है कंपनी की प्ली ये रिजेक्ट कर देता है और माइनर्स को अलाउ कर देता है कि वो पैसा जो है वो रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज माइनर्स आर बेनिफिशियरी इन दिस केस. एक बार कंपनी ने माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, अगर उस केस में माइनर बेनिफिशियरी हैं तो कंपनी को पेमेंट माइनर को करनी ही पड़ेगी, बिकॉज माइनर जो है वो बेनिफिशियरी हैं. देन नेक्स्ट इज नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस. देखिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक रेमेडी मिलती है एग्रीव्ड पार्टी को. जब भी कोई पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करती है देन इट विल बी कॉल्ड एज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो कोर्ट में उस पर्सन को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी अवेलेबल है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको एज इट इज़ ही परफॉर्म किया जाए, कि पार्टीज़ को उसी पोजीशन पर वापस लेकर आया जाए. क्योंकि माइनर जो है वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो माइनर के केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड नहीं होती. बट यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस. अब वो कौन से केसेस हैं? अगर माइनर के बिहाफ पे जो एग्रीमेंट किया गया है वो माइनर के गार्जियन ने और मैनेजर ने किया है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गार्जियन या मैनेजर होना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो माइनर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, देन ओनली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी अलाउड बाय द कोर्ट. अदरवाइज देयर इज नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन द केस ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट. देन नो इंसॉल्वेंसी, बिकॉज a minor cannot be declared insolvent as he is incapable of contracting debts and dues are payable from the personal property of the minor and he is not personally liable. So minor incapable होते हैं, minor cannot be declared insolvent. Simple. Then next is no estoppel against a minor. देखिए no estoppel against a minor का मीनिंग सिंपल ये है कि we cannot stop the minor to show his infancy in the court. माइनर जो है अपनी माइनॉरिटी कोर्ट में शो कर सकता है. अगर माइनर ने कोई एग्रीमेंट किया है विद द बी और माइनर अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ शो करके एग्रीमेंट से बाहर निकल भी सकते हैं, मीन्स वी कैन नॉट स्टॉप द माइनर टू शो हिज इन्फेंसी इन द कोर्ट. माइनर के पास कोई राइट नहीं है किसी को फ्रॉड करने का. अगर वो फ्रॉड करता भी है तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन ये हो सकता है कि माइनर ने जो भी आपसे बेनिफिट लिया उसको माइनर को वापस करना पड़ेगा. फिर वही है कि अगर माइनर के पास पैसे नहीं हैं तो माइनर विल नॉट बी लायबल, माइनर कैन नॉट बी पर्सनली लायबल. बट अगर माइनर जो है आपसे फ्रॉड करके उसने आपसे पैसा लिया, जितना उसने खर्च कर दिया वो पे नहीं करेगा, बट जितना उसके पास पड़ा हुआ है तो कोर्ट ये कह सकता है क्योंकि आपने फ्रॉड करके एग्रीमेंट किया है तो जितना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है वो आपको वापस करना पड़ेगा. देन माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, सिंपल, अंडर पार्टनरशिप एक्ट. देखो, अ माइनर बीइंग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म, बट अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. तो वो पार्टनर नहीं हो सकता, बट पार्टनरशिप के जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स में वो एडमिट हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. नेक्स्ट इज
माइनर कैन बी एन एजेंट, यस माइनर एजेंट हो सकता है। एजेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर हम एजेंसी की बात करें तो वो है, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वन इज़ द प्रिंसिपल, वन इज़ द एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट के थ्रू काम करता है, अगर एजेंट कोई भी काम करेगा तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। मीन्स माइनर कैन बी एन एजेंट बट द प्रिंसिपल विल बी लायबल for the agreement which has been made by the minor with the third party, means solely principal will be liable. Then minor cannot bind parents or guardian, yes minor cannot bind parents or guardian, minor अपने parents को या guardian को bind नहीं कर सकता किसी भी contract में। पेरेंट्स कैनॉट बी हेल्ड लायबल, एग्रीमेंट माइनर ने किया, वो पेरेंट्स को बोल दे कि पेमेंट जो है वो पेरेंट्स से ले लो, तो पेरेंट्स कैनॉट बी हेल्ड लायबल। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट विद द माइनर इज़ अ वर्ड एग्रीमेंट, ठीक है, सो पेरेंट्स तो लायबल हो ही नहीं सकते हैं। तो बट जहाँ पे माइनर बोल देता है किसी थर्ड पार्टी को कि मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ बट पेमेंट जो है वो मेरे पेरेंट्स से ले लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स माइनर कैनॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्जियन। देन नेक्स्ट इज जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई भी करता है विद द एडल्ट, मतलब दोनों मिलकर के जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद द थर्ड पार्टी, एक माइनर एडल्ट दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट मिलकर के करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो उस केस में भी एडल्ट ही लायबल होगा, माइनर कैनॉट बी लायबल इन दिस केस। देन श्योरिटी फॉर अ माइनर, अगर कोई श्योरिटी माइनर की देता है तो जो पर्सन श्योरिटी दे रहा है वो ही लायबल होगा, माइनर कुछ भी करे। Then next point is minor as a shareholder. A minor being incumbent to contract cannot be a shareholder of the company. But agar by mistake he becomes a member, the company can rescind the transaction and remove his name from register. But a minor may, acting through his lawful guardian, become a shareholder by transfer or transmission of fully paid up शेयर्स टू हिम। मतलब फुली पेड अप शेयर के लिए अगर गार्जियन माइनर के शेयर खरीदते हैं तो वहाँ पे वो माइनर जो है वो शेयर होल्डर हो सकता है। देन माइनर्स लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, अगर माइनर कोई भी टॉर्ट करे, टॉर्ट का मीनिंग होता है सिविल रॉन्ग, तो माइनर कैन बी लायबल फॉर द सिविल रॉन्ग। देन लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी सप्लाइड, अगर माइनर को कोई भी नेसेसिटी मिलती हैं, मतलब माइनर को हम कोई भी नेसेसिटी सप्लाई करते हैं तो हम वो माइनर की प्रॉपर्टी में से व्हेन एवर माइनर विल बिकम मेजर वी कैन क्लेम इट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। माइनर कैन नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द सेम, बट इफ़ माइनर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो हम प्रॉपर्टी में से वो क्लेम कर सकते हैं। ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी हो सकता है ये वाला एग्रीमेंट, क्योंकि आपस में पार्टी नहीं मिलती हैं बट फिर भी एग्रीमेंट बन जाता है बाय लॉ। मीन्स अगर आपने कोई भी नेसेसरी के लिए चीज़ें प्रोवाइड की हैं माइनर को, उसके लिए खर्चा किया है, तो वो आप माइनर की प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकते हो लेटर ऑन व्हेन एवर माइनर विल बिकम मेजर। टू रेंडर माइनर स्टेट लायबल फॉर नेसेसरीज, टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट। द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज नेसेसरीज। देखो माइनर की जो नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा और मकान तो ही, साथ में मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, अगर माइनर घर का किराया आप दे रहे हो माइनर के बिहाफ पे वो भी है, माइनर की कोई कोचिंग फ़ीस है वो आप दे रहे हो, माइनर ने कोई रेस में पार्टिसिपेट करना है उसका खर्चा है वो आप उठा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें माइनर की नेसेसिटी में आ सकती हैं। इवन जो माइनर की नेसेसिटी है वो डिपेंड करता है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। तो जो भी खर्चा आप करते हो माइनर की नेसेसिटी के लिए तो वो लेटर ऑन आप क्लेम कर सकते हो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल पर्सनली बट प्रॉपर्टी कैन बी लायबल ऑफ द माइनर। इवन देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन मेजर एंड अ माइनर, बट इवन देन माइनर एस्टेट कैन बी लायबल फॉर द क्लेम। इसमें केस हुआ था नाश वर्सेस इनमान। इस केस में सिंपल ये था, इनमान जो है, इनमान एन इन्फेंट अंडर ग्रेजुएट इन कैम्ब्रिज bought 11 fancy waistcoat from Nash. He was at the time adequately provided with the clothing. मतलब clothes provide कर दी गई 11 fancy waistcoat. Held the waistcoat were not necessary and the price could not be recovered. जो waistcoat हैं वो माइनर की नेसेसिटी नहीं थी,
बट फिर भी प्रोवाइड कर दी गई, खर्चा हुआ और लेटर ऑन क्लेम किया गया, बट क्लेम रिजेक्ट हो गया बिकॉज जो वेस्ट कोट है वो माइनर की नेसेसिटी उस टाइम थी नहीं। होप गाइज आपको सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, रूल्स रेगुलेशन समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज़ मोटिवेट बाय लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल एंड वेलकम फॉर द क्वेश्चंस।